So students, that's the first question of today. And a body is moving with uniform acceleration in a straight line and describes successive equal distances in the time interval t1, t2, and t3. So equal distances. So this distance is x, this also x, and this also x. And in the time intervals, so this is time t1, t2, and t3. So here if the time is 0, students, here the time will be t1, and here the time will be t1 plus t2, right? And here the time will be t1 plus t2 plus t3. So as you know that the body is moving with uniform acceleration. Students, don't get confused. We did we found the average velocity where, do you remember, if the time if the velocities I mean time were same, and in the second case distances were same. So in both the cases, acceleration for this particular time was constant and acceleration for this particular time was also constant, students. Okay, and then we found the average velocity as v1 plus, as arithmetic mean v1 plus v2 by 2, and here we found the average velocity as harmonic mean 2v1 v2 upon v1 plus v2. Okay, if the distance are same. But students, this is not that question, because here acceleration was 0, okay, in one interval, and velocity was constant. But here we have acceleration, so this concept is not related with this concept. Is this clear to you? Why it is not connected? Because in the particular interval, acceleration is not 0, velocity is not constant. We have uniform acceleration. Is this clear to everyone? Okay. So students, I hope the question is clear to you. Acceleration is same throughout, right? And we have assumed that this distance is x, right, in one interval. So this distance is x, this distance also x, and this distance also x. So what we have to prove in this question? We have to prove that 1 upon t1 minus 1 upon t2 plus 1 upon t3 is equals to 3 divided by t1 plus t2 plus t3. So that's what we need to prove. This is what written over here to prove. So you can even let them as A, this point as B, this point as C, and this point as D. So students, you have to assume the velocities here also. So let velocity at A, let it be VA, here VB, here VC at point C, and at point D, the velocity is VD. So now I told you average velocity, two formulas we have already discussed, and another formula of average velocity, you know, that is displacement, total displacement upon total time, right? Now students, we have another formula for average velocity is u plus v divided by 2, isn't it? So 1, 2, 3, and 4 for special cases, v1 plus v2 divided by 2, when these velocities v1 and v2 were constant,
and in the time interval, the time means the time intervals were same. T1 is equals to T2, and another average velocity harmonic mean 2v1 v2 upon v1 plus v2, and in that case v1 and v2 are constant. They were constant, and x, the distances were same, means, right? So here we will be using this concept, average velocity between A and B when there is constant acceleration. Okay, students? Yes, sir. So this is just like AP. Do you remember the formula of AP? AP is n by 2. Sum of AP is n by 2 into A plus L. Do you remember that formula? And Sn is equals to n into A plus L by 2. So that is the average. First term, last term divided by 2 is the average. And if you multiply the average with the number of terms, you get the sum. Yes? So here also this is the average. Initial velocity u, final velocity v. So initial plus final divided by 2. Why? Why this formula? Because this is also an AP. In first, second, second, third, second, fourth, second, fifth, second, sixth, second, 0 second. So here the velocity was u and here the velocity is v. And what is the common difference of this AP, students? What is the common difference? In 1 second, how much the velocity is increasing? Term. A. Acceleration in 1 second, the velocity is increasing by amount A. Suppose I am giving you example that if u is equals to 4 meter per second square per second, and acceleration is 2 meter per second square, so it means acceleration is 2 meter per second per second. So velocity is increasing at the rate of 2 meter per second in 1 second. Okay, so common difference is acceleration, that is 2. So the velocity here was 4, then velocity becomes 6, then velocity becomes 8, then velocity becomes 10, then velocity becomes 12, then 14, and then 16. So all these number 4, 6, 8, these velocities, they are in AP. So if you want to find the average, you will simply add 4 plus 16 divided by 2, and that will be your average 10. So students, this is the same concept. This formula is related with the AP because constant acceleration is there. So your common difference is this. Getting some idea or not? So let us come back to our question. So the average velocity, as I told you, that it will be u plus v or v plus u by 2. Okay. And you know, displacement into time, average velocity into time is your displacement. So displacement is equals to average velocity into time. And this is what your average velocity is. So what will be this distance, students? U VA plus VB divided by 2 into time T1, isn't it? Yes, sir. So what will be VA plus VB? 2x upon T1. Yes? Yes, sir. So what will be VB plus VC? Similarly, can you tell me? 2x upon T2. Very good. 2x upon T2. Okay.
what will be VC plus VD? 2x by t3. 2x by t3. Okay. So similarly, we can write these equations. Now, what is the average velocity? So this was the average velocity between A and B, B and C, C and D. But what about average velocity between A and D? Means A and D. What is the average velocity? Yes, that will be equal to initial velocity VA, final velocity VD divided by 2. Yes, this formula, this average velocity. Yes, this formula. Isn't it, students? So VA plus VD divided by 2. Now, what will be your displacement using this? X plus X plus X. That is your displacement. That is equals to, displacement is equals to average velocity into time. What is average velocity? VA plus VD by 2. So we are using this formula, right? Average velocity is equals to, so average velocity of this A to D, A and D, and so the displacement is X plus X plus X, and that's the average velocity multiplied by time. So how much is the time, students? t1 plus t2 plus t3. Yes, T1 plus T2 plus T3. So by this way, like we have found VA plus VB, VC plus VD, and VD plus VC plus VD. Similarly, for VA plus VD, what will be the value? 2 into 3x divided by T1 plus T2 plus T3. Okay? Yes, sir. So that I can write it as 6x. So these are the 4 results we have just found. So what was the purpose? The purpose was that if you write VA plus VD, this we have done in maths also earlier in class 9, 10th. How can we write VA plus VD in terms of these 3 students? We can write VA plus VB minus VB plus VC minus VC plus VD. Yes? VB, VC, VC cancel out. Again getting the same VA plus VB. Agreed or not? Agreed? Yes, sir. So students, this can be written as, because now you have these values VA plus VB, VB plus VC, and VC plus VD. So VA plus VB. Now can you write VB plus VC? See, you have this term minus VC, you have terms minus VB. To take the minus common, so you'll get, yes, minus VB plus VC, yes, plus last term VC plus VC plus VD. So VC plus VD. Agreed or not? Yes, sir. Now, is this question easy or difficult? So what is your VA plus VD, students? What is your VA plus VD? So these are the 4 equations. 1, 2, 3, 4. Put all the values. VA plus VD. 6x upon T1 plus T2 plus T3, and that is equals to, what is VA plus VB? 2x upon T1 minus, what is value of VB
plus vc, 2x upon t2 plus what is vc plus vd. 2x upon t3. वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ 3 से क्या 6 से क्या आ जाएगा 3, and that's what you were supposed to do. So 1 by t1 minus, so x will also cancel out, so divide both sides with 2x. Okay, so you get 3 upon t1 plus t2 plus t3 is equals to 1 upon t1 minus 1 upon t2 plus 1 upon t3. So students, this is the physics used here, but here you have used simple maths, right? So the question was quite easy, you know, it seems to be difficult, but these questions are never difficult, students. They are tricky questions. Okay, so more you practice, more you will be able to handle these tricks. That's the only way out. Practice more and more questions. Okay, and revise the questions 3 times at least, so that you will be able to grasp them, the tools you can collect. Students, shall we take the next question? So very important question, students, and even if you can remember this result, and if you are lucky, you can get a question in mains based on this formula. So what was the question? The question was distances were same this time, and so when the distances are same, then the time intervals 1 by t1 minus 1 by t2 plus 1 by t3 is equals to 3 upon t1 plus t2 plus t3. If you can remember this result, you can use this result directly. Suppose I have given you t1 and t3, you can tell what is t2. Okay, so quite important result, students. Shall we move to the next question? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that's the next question, students. In a car race, car A takes a time t less than car B and passes. तो कार रेस हुई, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो सेम है. ओके, और दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी सेम है, स्टूडेंट्स. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इज s, लेकिन जो टाइम लिया दोनों ने वो क्या है, अलग अलग है. ओके, सो सपोज फर्स्ट कार ने टाइम लिया t1, so the car A takes a time t less than car B. So car B ने suppose टाइम लिया t2 और कार A ने टाइम लिया t1. तो स्टूडेंट्स t2 माइनस t1 आपको दे रखा है t. ओके, Yes, sir. तो अगर आप ऐसे भी लिख देंगे इसको, टेक्स की जगह वर्ब है, ये वर्ब की जगह इक्वल लगा लो, और इधर कार ए ने टाइम लिया t1, टेक्स की जगह इक्वल टू लगा लिया, एंड t लेस देन b, तो b का टाइम t2 था, उसमें से t लेस कर दो. ओके, तो t1 इक्वल्स टू t2 माइनस t, तो यहां से भी आपके पास क्या आ जाएगा, t2 इधर इसको माइनस करोगे तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू t. तो दैट्स द सेम थिंग. ओके, Yes, sir. चलो, एंड passes the finishing point with a velocity v more than the velocity with which car B passes the.
सो कार बी स्लो थी, जो सेकंड कार हम ले रहे हैं बी कार, वो क्या है, स्लो, ऑब्वियसली स्लो है। और जो फर्स्ट कार है वो क्या है, फास्टर। तो दिस इज स्लोअर एज कम एंड कार ए इज फास्टर। तो उसकी वेलोसिटी जो थी, जब फिनिशिंग पॉइंट पास किया यहां पर, तो जो वेलोसिटी थी v1, कार वन फास्टर थी, और कार टू से तो जो उनकी फाइनल वेलोसिटी थी, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, v। सो ये आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन टू यू v एंड दिस डिफरेंस इज p। ओके, दोनों कार्स रेस्ट से स्टार्ट हुई हैं एंड ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, and I am telling you that the value of v is equals to t into under the root a1 a2। ये आपको प्रूव करना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व किए हैं क्वेश्चन में, एक यहाँ t इन्वॉल्व हुआ है, एक यहाँ v इन्वॉल्व हुआ है, और यहाँ a1 और यहाँ a2। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, वी हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन दीज 4 वेरिएबल्स, दैट्स द क्वेश्चन। Got the question? Yes, sir. Okay. तो स्टूडेंट्स इसमें रिलेटिव कंसेप्ट यूज हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, v1 माइनस v2, इसको क्या लिखेंगे आप, दैट इज इक्वल्स टू v12 है ये, यस। तो स्टूडेंट्स अगर यहां से आप रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करेंगे, तो u तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो u थी वो तो जीरो थी, क्योंकि दोनों की जीरो जीरो थी, तो u12 तो जीरो था आपका। तो अगर आप इक्वेशन लिखें, what is the equation do you have, s is equals to, दो इक्वेशंस है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, और दूसरी इक्वेशन अभी आपने लिखी है, s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ बेटा, Yes, sir. ये इक्वेशन ठीक रहेगी, s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी अभी आपने लिखी थी u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर u जीरो है, तो दोनों केस में u जीरो है। अभी एवरेज वेलोसिटी को छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। यहां देखो, सिंपल सिंपल टर्म्स में देखो, तो क्या आ जाएगा u जीरो, तो v बाय 2 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू v बाय 2 इंटू टी, यस। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v1 t1 बाय 2, और दूसरी कार के लिए v2 t2 बाय 2। तो ये एक और फार्मूला आ गया आपके पास, नया फार्मूला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, अगर u जीरो है, अगर u जीरो है और एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि होता ही होता है हमारे सारे क्वेश्चंस में, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनमें यूज करते हैं, तो फार्मूला आ गया s इज इक्वल्स टू हाफ वी टी। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Clear. याद रखना, ये फार्मूला शॉर्टकट में काम आएगा आपके, शॉर्टकट, एक स्पेशल केस। ओके, चलो।
और ये जो फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आपका यू जीरो है तो यहां से क्या एस बनता है आपका बेटा? एस इज इक्वल्स टू, हाफ हाँ तो दो फार्मूला आ गए ना अब आपके पास एस के, एक ये फार्मूला और एक हाफ वी टी। दोनों फार्मूले याद रहेंगे ना अब? Yes, sir. yes sir तो चलो दूसरे को भी यूज कर लो। हाफ ए वन टी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ए टू टी टू स्क्वायर। हो गए यूज। नाउ आपको v की वैल्यू क्या होगी? v को लेकर आना है और किसको लेकर आना है? t को। तो v और t को लेकर आना है, तो v और t की वैल्यू v इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 एंड t इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। भाई जो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका टाइम कम होगा ना। yes yes sir अब वेलोसिटी इज, ये क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये निकाल रखा है ना आपने। t1, ये v1 की वैल्यू और t1 की वैल्यू यहां से ले लेंगे ना बेटा। तो क्या आएगा? v1 इज इक्वल्स टू 2s अपॉन t1 नहीं आ जाएगा क्या? T1 माइनस 2s अपॉन t2 डिवाइडेड बाय, बेटा आसान क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है बताओ? सॉल्व करो। ऊपर 2s कॉमन है और क्या आया? t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t1 t2, फर्दर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और ये t2 माइनस t1 है तो ये 1 अपॉन मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1 ऐसे हो जाएगा ना ये। तो जो, हाँ, क्लियर। और यहां आप देख रहे हैं दोनों न्यूमरेटर में थे, डायरेक्ट काट भी सकते हो इसको। यहां से बात वही है, यहां से काटो ऊपर लाके, नहीं तो डायरेक्ट काट दो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काटो। तो क्या आ गया आपके पास? दिस इक्वल्स टू 2s अपॉन T1 T2 t1 t2। अब आपको s हटाना है अब इसमें से, और a1 a2 लेकर आना है, इसीलिए तो ये दोनों इक्वेशंस ली हैं। s हटाना है और a1 a2 लेकर आना है। तो ये थी आपकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और ये इधर इक्वेशन 3 थी और इधर इक्वेशन 4 थी। तो 1 और 2 तो यूज कर लिया आपने। 3 4 को भी यूज कर लो। तो v और t तो आ गया ना। yes sir कैसे आएगा? क्या करेंगे? और v की पावर 1 और t की पावर 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं आपको। अब इसका देखो क्या करोगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर है, तो आपको बेटा क्या कर सकते हो, दोनों इक्वल है ना। हाँ? और t1 t2 की वैल्यू निकालनी है।
अगर आप इसको स्क्वायर कर दो t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर और ये 2s को भी स्क्वायर कर दो, सबको स्क्वायर करके अंडर द रूट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नो सर। भाई नो सब सर। सब का स्क्वायर कर दिया, सब का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां मेरे को t1 चाहिए, t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर चाहिए, और a1 को लेकर आना है, तो a1 तो तब आएगा ना जब मेरे को s 2s अपॉन t1 स्क्वायर मिलेगा। यही तो लेकर आना था a1, और a1 किसके इक्वल था? यहां से 2s अपॉन t1 स्क्वायर। अरे आ गया ना आंसर। यस सर। और ये किसके इक्वल था? t2 के, तो मेरे को अंडर रूट भी लेकर आना था। बेटा यही यही आपको लॉजिक यूज करना है, बस बाकी बच्चों में और आप में जो प्रैक्टिस करेंगे उनमें यही तो डिफरेंस होगा। उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चाहिए बस, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं आते। क्यों? सीबीएसई में आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें हमें किसी को एलिमिनेट नहीं करना। सीबीएसई में 10,000 बच्चों के भी 100 में से 100 आ गए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें हमें बच्चों को एलिमिनेट करना होता है, बाहर निकालना होता है सिस्टम से। तो बाहर तभी निकाल सकते हैं जब उनको ट्रिकी क्वेश्चंस देंगे जो हर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो प्रैक्टिस के साथ सॉल्व होंगे। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर जो है मैथ्स भी किया आपने, नाउ यू आर डूइंग फिजिक्स, तो यू आर अप्लाइंग फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलिए स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। यस सर। अरे ये मुश्किल क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन आसान है भाई बिल्कुल, और मैं टाइम भी पूरा दे रहा हूं, तो एक एक चीज लॉजिकली समझा रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारा जो काम है वो ये नहीं कि भागने का वो है, हमें इस समय पॉइंट इज कंसेप्ट क्लियर हो। स्पीड तो अपने आप बन जाएगी हमारी, उसकी कोई चिंता नहीं है हमें स्पीड बनाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप, मैंने बताया, कम से कम 3 बार सॉल्व करना। आज एक बार तो आज कर लेना बेशक, एक बार फिर एक हफ्ते बाद, एक बार 1 महीने बाद अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। चलिए चलो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स टारगेट, ये जो आपका आपकी बुलेट थी और एक टारगेट था आपका, फिक्स था टारगेट, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है, नीचे से होल्ड कर रखा है इसको, फिक्स्ड है। और जो बुलेट थी वो 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर गई इसमें। कितने सेंटीमीटर तक? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यस, तो यहां तक पेनिट्रेट कर गई इसमें। और उसके बाद कितनी वेलोसिटी लूज कर दी उसने अपनी? हाफ। हाफ। तो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहां वेलोसिटी v थी, तो पेनिट्रेट करके हाफ वेलोसिटी लूज कर दी 3 सेंटीमीटर में। हाउ मच फार्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कि जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। कितना और पेनिट्रेट करेगी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यू नीड टू एज्यूम कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिल रही है मोशन को, तो थ्रू आउट मोशन ए इज कांस्टेंट। तभी आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो, आपको पता ही है, नहीं तो कैलकुलस में जाना पड़ेगा अगर ए वेरिएबल है तो। ओके, बस अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया आपका। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप v की जगह u मान लो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर इसको आपने u माना तो हाफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर सिर्फ इतना केस मानते हैं हम, केस 1, तो इनिशियल फाइनल ये हो गई ना आपकी, केस 1 में। यस सर। तो बताओ, v स्क्वायर आपको पता है, u स्क्वायर आपको पता है,
और एक्सेलरेशन यहां भी वही होगी और आगे भी वही होगी, है ना। तो u आपको पता है जो भी था, और v को भी u की टर्म्स में लिख सकते हो, तो यहां से आप a निकाल सकते हो ना इन टर्म्स ऑफ u, और उस एक u को यहां आगे यूज कर लो, उस a को, बस यहां से a की वैल्यू पुट करो, यहां यहां डाल दो। निकालो, क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी हाफ हो गई, इनिशियल u ही थी, और 2 इंटू ए इंटू, और डिस्टेंस कितना है s। s को कितना लेंगे बेटा, 3. 3 सेंटीमीटर। 3 रख लो, सेंटीमीटर रख लो, क्योंकि बाकी कोई यूनिट तो है नहीं किसी की, तो 3 यूनिट्स है, आप ये मान के चलो दीज आर 3 यूनिट्स। 3 यूनिट समझो, जो भी यूनिट आपका आंसर ही नहीं यूनिट्स में आएगा, ओके। क्योंकि अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.03 मीटर बन जाएगा, उससे कैलकुलेशंस आपकी टफ हो जाएंगी, ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप इसको 3 यूनिट्स मानो बस, ओके। चलो करो जल्दी से, बताओ ए कितना आया। सर माइनस यू स्क्वायर बाय 8। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब उसको अगले में केस 2 में जाओ अब। तो केस 1 में, ये आपका केस 1 था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी u बाय 2 थी, डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन थी a। चलो अब सेकंड केस में आ जाओ, एक्सेलरेशन सेम a रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी u बाय 2 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और डिस्टेंस ये तो आपको निकालना है, चलो निकालो। 1 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्या है, माइनस यू स्क्वायर बाय 8 इंटू एस। बहुत बढ़िया, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एस आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं 0, ये तो खत्म ही हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहां से माइनस यू स्क्वायर से माइनस यू स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1 बाय, ये यहां से 2 से कट गया 4, और यहां भी 1 बाय 2 स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 से 4 यहां भी कट जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और यूनिट क्या थी आपकी बेटा, सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। चलो ओके सर। तो ऐसी ट्रिक्स है बस छोटी छोटी। चलो एक और क्वेश्चन करें आप जल्दी से, क्वेश्चन आज 3 ही हुए हैं बस। चलो तो अब तो जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा वार्म अप हो गए ना अब आप। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये जो है आपके आईआईटी मेंस, पहले इसका नाम एआई ट्रिपल ई होता था, ये एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस हैं सारे, द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग। तो ये जो अभी क्वेश्चन किया आपने, ये एआई ट्रिपल ई में 2005 में आया था। और अब एक और क्वेश्चन एआई ट्रिपल ई, जिसको आज के दिन जिसका नाम है आईआईटी मेंस, पहले इसका नाम होता था एआई ट्रिपल ई, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। चलिए, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट द, स्टूडेंट देखिए इन क्वेश्चंस में इनमें क्या खास बात होती थी, ये क्या करते थे आपको जो है ना, जो वेरिएबल्स आप नॉर्मल यूज करते हैं उसे दूसरे वेरिएबल डाल देते थे। तो जैसे अब एक्सेलरेट को क्या बना दिया इसने, ए को किस में चेंज कर दिया, एफ में, थ्रू ए डिस्टेंस एस। तो ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कार रेस्ट से चली, और एक्सेलरेशन क्या है उसका, एफ है, एंड थ्रू ए डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम टी। तो टी टाइम तक तो ऐसे चलती रही, उसके बाद डिसेलरेट्स एट द रेट ऑफ, अब उसके बाद जो उसकी एक्सेलरेशन, अब ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, एफ बाय 2। तो स्टूडेंट डायग्राम जरूर बनाना है, ओके। और यहां पर फिर वो आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई उसकी, फाइनल वेलोसिटी 0, ओके। तो अगर सारा का सारा जो टोटल डिस्टेंस दे रखा आपको वो कितना है, 5s, 5x. ओके। देन प्रूव दैट, टू प्रूव s is equals to half ft square। तो पहली बात तो आपको
ये ध्यान रखना कि आप एफ मानो ही मत, आप ए ही मान लो उसको, और लास्ट में जाके पुट कर दो उसको ए की जगह एफ। तो इससे आपकी कैलकुलेशंस क्या रहेंगी, इजी रहेंगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो हम इसको ए ही मानेंगे और इसको ए बाय 2 ही मानेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बार बार एफ आएगा, एफ आपको समझ में नहीं आएगा कि एफ है क्या। ओके, ट्रिक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है जो ऊपर किया था हमने, कर दो फटाफट। इस वेलोसिटी को जो है v1 मान लो, बीच वाली को। सर इसमें 3 केस नहीं बनेंगे। हाँ बेटा बोलो, कैसे? एक सेकंड केस तो ये होगा ना कि पहले उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया एफ एक्सेलरेशन के साथ, सेकंड केस में तो ओके, यस 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 यस, रीड, यस, एक्सेलरेशन 0। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो। A car starting from rest accelerate at uniform rate f through the distance then continues constant speed। ये बीच में ध्यान नहीं दिया हमने, constant speed थी बीच में, बिल्कुल 3 बनेंगे इसमें। ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, तो इसमें बीच में एक और मान लो आप। ये जो टाइम है इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो सपोज ये v1 है, तो यहां से यहां तक v1 ही रही स्पीड, यहां भी v1 है और फाइनल भी v1 है, तो बीच में भी कुछ डिस्टेंस था। ओके, तो 3 केस बन गए, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। So now students try to communicate in English, because as you go for higher studies, Hindi will not be allowed. Nobody will be talking in Hindi, because there were a lot of professors from South India and lot of professors from other states, and they are not comfortable in Hindi. So English, because now you are at your local level, so everybody is comfortable with Hindi. But as you move forward, you will going to colleges, you will find students also from South India and from northeastern states, so they people don't know Hindi. So the only medium of communication will be English. So that is why, and it takes time for you to get comfortable in English, students. You cannot be comfortable in English within a moment. It takes time to get the confidence. So start talking in English only. Is this clear to everyone? In all the classes, everywhere, practice it out. Because language जो है वो आप मैथ साइंस 1 महीने में भी सीख सकते हैं, but language and fluency in it takes lots and lots of time, especially when it is not your mother tongue. तो स्टूडेंट्स पूरे 2 साल लग जाएंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लुएंसी में, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। चलिए स्टूडेंट्स, तो केस 1 एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें आपका। देन v square minus u square is equals to 2as. So what do you get from this formula in case 1? v1 square minus 0 square is equals to 2as. Yes. Yes, sir. So you get v1 is equals to under the root 2as. So this is very important formula, students. Again, a new formula. You have done 2 formulas of s already. S is equals to half at square, and another was s is equals to half. Yes. When u is equals to 0, half v t square, t नहीं, s is equals to vt. That is another formula. वो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज यहां पर, इसमें a 0 है, इसमें a 0 नहीं है, इसमें a की कुछ वैल्यू है, तो दैट्स द डिफरेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके,
ओके सर हाँ, ओके सर and we have another important formula that final velocity is equals to 2as. remember, तो ये formulas हो गए आपके पास. ये special case when u is equals to 0, एक फार्मूला when u is equals to 0, सेकंड फार्मूला when u is equals to 0, थर्ड फार्मूला. तीन फार्मूलेज आ गए आपके पास u 0 है तो. और यहां से अगर आप इसे लिखेंगे तो s की टर्म्स में अगर इसे लिखना है तो s इज इक्वल्स टू 1/2a v स्क्वायर. सो v स्क्वायर बाय 2a, ये काम आएगा आपके फार्मूला जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं. तो v स्क्वायर बाय 2g, डिस्टेंस ट्रेवल जब u इज इक्वल्स टू 0 से बॉल ड्रॉप की तो हाइट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2g. ओके, ये शॉर्टकट्स हैं. अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम क्लियर करने हैं तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए टिप्स से बिल्कुल, जिससे टाइम वेस्ट ना हो. एक स्टेप लिखने में भी टाइम वेस्ट होता है, एक एक सेकंड की कीमत होती है, एक एक नंबर से एडमिशन हो जाता है और छूट जाता है. ओके ओके सर चलिए, और यहां पर यही फार्मूला अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो v इज इक्वल टू √2gh आ जाता. तो आपने ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ ये फार्मूले कर लिए. और यहां पर भी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अगर ऊपर से ये सारे फार्मूले हैं, u इज इक्वल टू 0 मतलब यू आर ड्रॉपिंग ए बॉल विद u इज इक्वल टू 0, तो आपकी जो हाइट होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज हाफ जी टी स्क्वायर. वेलोसिटी विल बी √2gh. कितनी हाइट से गिरी है उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी विल बी, एंड फर्दर कितनी हाइट हो चुकी है, दैट इज मींस वेलोसिटी हाइट रिलेशन. तो आप यहां से लिखो या यहां से, दैट्स द सेम थिंग, दैट्स द रिलेशन बिटवीन v एंड h. ओके चलिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हम करेंगे, लेकिन उसका हल्का सा पार्ट आप देख रहे हैं इसी से रिलेटेड है. चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच के चलो अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन. चलिए, अब यूनिफॉर्म मोशन आ गया स्टूडेंट. सेकंड केस कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में ए 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. ये पहले वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, अब यूनिफॉर्म मोशन में आ गए हैं. और यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको फार्मूला पता ही है, ये यूनिफॉर्म मोशन का फार्मूला स्टूडेंट्स, s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. और एवरेज वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी एक ही है इस केस में, तो सीधा फार्मूला है s. तो ये मान लो इसको, ये डिस्टेंस मान लो आप, ये तो हमें s गिवन था, इस बीच वाले को मान लो s1 है ये, ठीक है, या s2 मान लो. s1 को आपने s मान लिया तो इसको 2 भी मान सकते हो, ठीक है. तो s2 इज इक्वल्स टू यहां कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, s2 इज इक्वल्स टू u इंटू टी. तो डेट विल बी इक्वल्स टू, अब बेटा क्या बात है? सर v1 इंटू टू. हाँ, v1 इंटू टी, बिल्कुल ठीक है. तो क्या है आपके पास? v1 इज इक्वल्स टू, इसको ये ले लो, v1 इक्वल x2/2. तो पहले u की वैल्यू निकाल लो. हाँ, v1 की वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है. तो v1 की वैल्यू निकाल लो. तो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस फार्मूला? वी कैन फाइंड द वैल्यू. यस, so u is equals to v1, that is equals to under the root 2
बेटा नेक्स्ट स्टेज के लिए जो, इसको यू मत लिखो, ये छोड़ो, इसको V1 ही रख लो, आप V1 ही मान लो। चलो सो V1 जो है वो यहां, इसके लिए तो फर्स्ट केस ही चल रहा है अभी, ये सेकंड केस शुरू नहीं किया हमने अभी, फर्स्ट केस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां से ये, अरे ये लिख लिया, मान लिया, यस, इसको दोबारा से कर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, राइट। चलो V1 आ गया। अब S2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T, यूनिफॉर्म मोशन है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2AS इंटू T, इसको T मान लो बीच में जो टाइम है। चलो ओके, लिख रखा है ना, कांस्टेंट स्पीड कितने टाइम तक थी स्टूडेंट्स, T टाइम तक, तो ये T आपको गिवन है। ओके, और जो S आएगा आपका जो गिवन है, उसमें क्या क्या आपको गिवन है, एक तो T गिवन है वेरिएबल, एंड विच अदर वेरिएबल इज गिवन टू यू, F, यही तो वेरिएबल गिवन है, और एक ये कांस्टेंट है, तो आपका जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स में आएगा, S इज इक्वल्स टू हाफ FT स्क्वायर। तो जो वेरिएबल आपने अपनी तरफ से मानने, जैसे V1 है, S है, A है, ये सब रिमूव करने पड़ेंगे, जो भी वेरिएबल्स आप अपनी तरफ से मानते हैं वो सब आपको रिमूव करने होते हैं। ओके, अब तीसरा केस पे आ जाओ। फॉर डिसेलरेटेड मोशन, तो तीसरे केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है ना आपकी, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां से यहां तक, ये आपको पता ही अंडर द रूट 2AS है। कोई दिक्कत है क्या, क्या केस है ये, यहां वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 2AS, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, ये तो वेलोसिटी होगी, आपको U ये कुछ मत वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस। ओके, और एक्सेलरेशन कितना है इस केस में, A/2, और डिस्टेंस मान लो इसका, चलो आप S3 मान लो, S3 किसके इक्वल है, if the total distance is traveled in 5 seconds, फाइव सेकंड में सारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ स्टूडेंट्स, ये भी कंडीशन आपको गिवन है। यहां से क्या आएगा आपके पास, 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस अंडर द रूट 2AS इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या लिख दें, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, एंड दैट इज इक्वल 2 इंटू डिसेलरेटेड है तो नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन इंटू S3। ओके, तो S3 क्या आ गया आपका, 2 से 2 कैंसिल, अरे ये A/2 F/2, ये F को यही लिखना। ओके, स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना ये, A से A कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो S3 कितना आ गया बेटा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अरे S3 इज इक्वल टू 2S आया नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो S3 2S है, पहले वाला आपका S था, ये S है, ये 2S है, तो बीच में कितना बच गया बेटे, टोटल 5S था, 2S आ गया ना बीच में,
यस सर। अब यही फॉर्मूला यूज करो, ये यहाँ पे 2s लिख दो s2 की जगह, तो 2s इज इक्वल टू अंडर द रूट 2as इंटू टी। यही तो चाहिए था आपको, एस एफ ओ टी, यही तो रिलेशन चाहिए था आपको। यस, अब क्या करोगे? अब इस फॉर्म में लाना आपको, टी स्क्वायर चाहिए आपको, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यस, हाँ, आ गया नहीं आया आंसर? एस इज इक्वल टू हाफ एफ टी स्क्वायर, यहां से 2s 4s स्क्वायर क्या आया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 2as टी स्क्वायर, आ गया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, एक s से एक s काट दो, तो क्या आ गया आपका s, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हाफ ए टी स्क्वायर, और ए हमने क्या, ए क्या दे रखा आपको, f, तो हाफ एफ टी स्क्वायर। यस सर। तो 3 सिंपल सिंपल से केस थे, 3 इक्वेशन थी सिंपल, पहले वाले से v1 निकाल लिया और दूसरे वाला हमने निकाल कर छोड़ दिया, s2 इज इक्वल टू दिस, और तीसरे वाले से हमने s की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये AST तो आ गया था, लेकिन S2 जो था वो हमें नहीं चाहिए था, तो हमें S2 की वैल्यू निकालनी थी, तो S2 की वैल्यू जो है वो हमें S3 से हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस, और उससे हमें S2 पता लग गया कि वो 2s है, बस हमारा काम हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब आप पहली बार किया तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ है, आप इनको एक दो बार और करो तो जो बाकी क्वेश्चन होंगे सीबीएसई के, वो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं। तो ये आप क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा है? चलिए, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करो, इनको एक बार और करना, अभी क्लास खत्म हो गई ना, अब इनको एक बार और करो, जल्दी हो जाएंगे इस बार तो, 15-20 मिनट लगेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपने इसको अभी नहीं किया, कल किया, तो हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन आज ही दोबारा करेंगे सोने से पहले, तो ये 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे आपके तीनों क्वेश्चन, 6-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको एक क्वेश्चन के अंदर, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए लाइफ में याद रखना, सेम डे का काम सेम डे रिवाइज करना आपको, क्योंकि उससे रिवीजन में टाइम कम लगता है, और अगर आपने आज उसको रिवाइज नहीं किया, आज आपने रीराइट नहीं किया, आप उसको रीराइट कल करेंगे तो आपको दुगना टाइम लगेगा, आज 20 मिनट लगे तो कल 40, और अगर एक हफ्ता नहीं किया आपने तो फिर वो होना ही नहीं है, फिर उसमें जो है हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। जब आज आपके पास 20 मिनट नहीं है, तो एक हफ्ते बाद आपके पास 2 घंटे कहां से आ जाएंगे, और हर सब्जेक्ट की यही कहानी होगी। तो सक्सेस फुल स्टूडेंट्स की एक निशानी होती है कि वो आज का काम आज ही करते हैं, बस आज ही रिवाइज करके, आज ही अपने नोट्स बना के कंफर्टेबल करके छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और क्लास तो जो है वो रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी, आज केमिस्ट्री क्लास जो है वो नहीं ले रहा मैं, ठीक है, अभी क्योंकि कुछ ज्यादा हुआ नहीं आपकी केमिस्ट्री में, बहुत बेसिक चीज हुई है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़ा हो जाने दो, अभी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाने दो, तो देन आई विल स्टार्ट द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो ये फिजिक्स मैथ का थोड़ा और करो। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।